Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for the second lecture of class 10 chapter number 11 Human Eye and Colorful World. In lecture number 1 we discuss about human eye, defect of human eye and remedy action for the in this lecture we discuss about refraction of light and atmospheric refraction. Now first of all, in previous lecture you will learn about light refraction and reflection and refraction. Now first of all we discuss about refraction of light through a prism. Now what is prism? Prism is a transparent refracting medium bounded by at least two lateral surfaces inclined to each other at a certain angle. तो prism क्या है? It is one transparent refracting medium bounded by two lateral surfaces inclined to each other at a certain angle. It is called as a prism. It has a two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. The angle between two lateral surfaces is called as angle of prism. The angle between two lateral surface is called as a angle of prism. Now here a light beam is incident through a certain angle and it will touch to the prism over here. Then the refraction of light will be done. It will be refracted like in this path, and after the refraction again it will be refracted and going to the air in this direction. Here in the above diagram, the ray light incident beam is entering from the air. यहाँ पे जो इंसिडेंट रे ये यहाँ पे कौन सा मीडियम है? आउटसाइड मीडियम है एयर, यहाँ पे प्रिज्म का मीडियम है, यहाँ पे फिर से मीडियम है एयर. In diagram, an incident beam is entering from air to a glass at a first surface AB. The light ray on refraction is bent toward the normal. तो यहाँ पे जो दो मीडियम चेंज है, एयर में से आएगा वो प्रिज्म में, तो मीडियम चेंज होगा. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन it will change its direction and it will be bent. तो जब भी लेस डेंसर मीडियम में से हैवी डेंसर मीडियम में आएगा, then it will be moved towards the normal. That's why it will be moved towards the normal. At the second surface, here at the second surface AC, the light rays enter from this glass to the air. So again it will be bent away from the normal. यहाँ पे away from the normal क्या है? प्रिज्म का जो है हैवी डेंसर मीडियम है वो लेस डेंसर मीडियम एयर में जाएगा, तो हैवी में से लेस डेंसर में जब भी जाएगा then it will be bent away from the normal. तो above diagram show the refraction through the prism. तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इंडिकेट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी. फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ प्रिज्म ए. एंगल ऑफ प्रिज्म ए क्या है? द एंगल बिटवीन द टू लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म. अभी हम देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन डी. एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इट इज़ द एंगल एट विच एन इमर्जेंट रे यहाँ पे फिगर में क्या है? दिस वन इज इमर्जेंट रे. जो प्रिज्म के बाहर एसी सरफेस के बाद एयर में जो आता है वो इमर्जेंट रे.
इट इज़ एन एंगल एट विच द इमर्जेंट रे मेक्स विथ इंसिडेंट रे। यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो जो एंगल है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल जनरेट हो रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन फिगर में क्या है, यहाँ पे है ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी इज डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए। सॉरी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई minus angle A. Next is a dispersion of white light by a glass prism. अभी हमने पहले देखा है refraction of white light by glass prism. Now dispersion of white light by glass prism. अभी dispersion का meaning क्या होता है? First of all, the phenomenon of splitting of white light into its constituent color when it is passes through a prism, it is called as a dispersion. हम जानते हैं जो white light होता है, जो white color होता है, वो white color 7 अलग अलग कलर से बनता है। तो जब भी white light प्रिज्म में से पास होते हैं तो जो ये white light है वो उसके 7 अलग अलग कंस्टिट्यूट कलर में डिवाइड होता है। इस फिनोमिनन को डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज ऑब्टेन बाय वीबजियोर। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कैसे याद रखोगे आप, वीबजियोर से याद रख सकते हो। वी मतलब क्या, वायोलेट, आई मतलब क्या, इंडिगो, बी मतलब क्या, ब्लू, ओ मतलब जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज एंड आर इज इक्वल टू रेड। इट इज़ कॉल्ड, ये 7 रंग से आपको जो मिलता है उसको क्या बोलोगे, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम। इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम। तो ये जो 7 कलर का जो बैंड है उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। तो उसमें कौन से कलर आते हैं, वीबजियोर मतलब VIBGYOR, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दिस band of 7 color, it is called as a spectrum, or you can say that spectrum of white light. Now who was first invented this dispersion of white light by a glass prism? Sir Isaac Newton was the first one to use a glass prism to obtain a spectrum of light. तो white light का 7 कलर में जो स्प्लिटिंग होता है उसको हम डिस्पर्जन बोलेंगे, और वाइट लाइट जो 7 कलर से बनता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट ग्लास प्रिज्म का यूज़ करके स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट उन्होंने फाइंड आउट किया था। हियर वन नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस प्रिज्म, यहाँ से वाइट लाइट आ रहा है, वाइट लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है, और डिस्पर्जन मतलब क्या, वाइट लाइट स्प्लिट हो रहा है इस 7 कलर में, तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। हियर वन इम्पोर्टेंट नोट इज अ सिमिलर बैंड ऑफ 7 कलर इज प्रोड्यूस व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल ऑन अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो जब भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से वाइट लाइट आती है और वो ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म पे पड़ती है तो भी हमको ये सिमिलर 7 कलर मिलते हैं। नाउ अभी हमने देखा डिस्पर्जन क्या है।
नाउ व्हाट आर द कोज ऑफ दिस डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन होने का मेन रीज़न क्या है, कोज क्या है। लाइट रेज ऑफ different color travel with the same speed in the vacuum and air, but in any another medium they travel with a different speed and bend through a different angle, which leads to the dispersion of light। जब भी लाइट रेज एटमॉस्फेयर में, वैक्यूम में या एयर में जब भी ट्रैवल करते हैं तो इस जो अलग अलग कलर स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन यही अलग अलग कलर जब कोई मीडियम में से पास होंगे तब उनकी जो स्पीड होगी, हर एक कलर की जो स्पीड होगी ओके वो डिफरेंट हो जाएगी। उसके कारण उसकी जो वो अलग अलग उनकी बैंडविड्थ अलग अलग हो जाएगी। उसके कारण ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमको मिलता है। यहाँ पे जो 7 अलग अलग कलर है उसमें रेड लाइट हैज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायोलेट लाइट हैज़ अ मिनिमम वेवलेंथ। ये जो विबग्योर हमने देखा उसमें जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ये 7 कलर में सबसे ज़्यादा होती है, और जो वायोलेट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। सो इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट एंड वायोलेट लीस्ट। सो कोई भी रेड लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और वायोलेट लाइट सबसे स्लो स्पीड से जाएगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। सो वायोलेट लाइट ट्रैवल्स स्लोवेस्ट एंड डेविएट्स मैक्सिमम, और उसके कारण उसकी स्पीड सबसे कम है, उसके कारण उसका जो डेविएशन होता है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने ये अभी डिस्कशन की उसके रिगार्डिंग अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ वेवलेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जो भी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। रेड लाइट है तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। वायोलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है कंपेयर टू द रेड तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन डेविएशन। तो जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना डेविएशन कम होगा, जितनी वेलोसिटी कम होगी उतनी डेविएशन ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। तो हमने आगे देखा कि वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होते हैं, स्प्लिट होते हैं, उसके हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अभी हम बोलेंगे ये डिस्पर्जन हुआ वाइट कलर का 7 कलर में। अभी वो 7 कलर को रिकॉम्बिनेशन करके अगर हम वाइट लाइट बना सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। ये प्रैक्टिकल न्यूटन ने किया था। न्यूटन शो दैट द रिवर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ऑल्सो पॉसिबल। डिस्पर्जन मतलब क्या, वाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिटिंग होने की जो फिनोमिनन है उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। अभी रिवर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ऑल्सो पॉसिबल। ही केप्ट 2 प्रिज्म, यहाँ पे देखो अलग अलग 2 प्रिज्म लिए हैं। ही केप्ट 2 प्रिज्म क्लोज टू ईच अदर, वन इन इरेक्ट पोजिशन एंड अदर इन इन्वर्टेड पोजिशन। तो एक को सीधा रखा, एक को उल्टा रखा। ही केप्ट 2 प्रिज्म, और उन्होंने प्रिज्म को एक दूसरे से नज़दीक रखा, एक को सीधा रखा, एक को उल्टा रखा। वन इज केप्ट इन इरेक्ट पोजिशन, वन इज केप्ट इन इन्वर्टेड पोजिशन। देन द लाइट गेट डिस्पर्स व्हेन दे पासिस थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म। तो अभी यहाँ पे जब भी वाइट लाइट आएगी, वो वाइट लाइट जब भी प्रिज्म में से पास होगी तो वाइट लाइट ये 7 कलर में वो डिवाइड होगी। ऊपर का कलर रेड होगा, नीचे का वाइट। और फर्स्ट प्रिज्म के बाद वो जैसे ही सेकंड प्रिज्म में एंटर होगी, ओके, द सेकंड प्रिज्म रिसीव्स ऑल द 7 कलर रेज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म एंड रिकम्बाइन देम इनटू अ ओरिजिनल वाइट लाइट। तो यहाँ पे वाइट लाइट फर्स्ट प्रिज्म में गया, वाइट लाइट का
वाइट लाइट में से 7 कलर में डिस्पर्जन हुआ, वही 7 कलर सेकंड प्रिज्म में एंटर हुए। सेकंड प्रिज्म में से जैसे बाहर निकले तो इस 7 कलर का वाइट लाइट में फिर से कन्वर्जन हो गया, तो ये फिनोमिनन को रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट कहेंगे। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या दिखाता है कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से बना हुआ है। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज अ वाइट लाइट। ओके, तो ये 7 कलर से जो भी हमको लाइट मिलती है उसको हम वाइट लाइट कहते हैं। सो दिस इज द phenomenon regarding to the recombination of white light. Then we discussed a rainbow. आपने देखा ही होगा अभी जो सीज़न है, ओके, मानसून सीज़न है, मानसून में आपने रेनबो देखा होगा। रेनबो क्या है? रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। तो वो एक तरह का नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या? वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड होने से जो मिलता है वो स्पेक्ट्रम है। तो रेनबो भी क्या है? रेनबो में हमको 7 कलर दिखते हैं। तो रेनबो भी क्या है? वाइट लाइट। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। तो रेन शावर के बाद जो रेनबो दिखता है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, स्काई में जो नज़र आता है वो। इट इज़ कॉज्ड बाय, वो किसके कारण होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय a dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere। तो वो रेनबो का हमको क्यों दिखते हैं? इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के डिस्पर्जन के कारण रेनबो दिखता है। कैसे दिखता है? जो टाइनी वाटर है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण ये हमको रेनबो दिखता है। अभी कैसे दिखते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। तो रेनबो हमेशा जो सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखेगा। द वाटर ड्रॉपलेट इज एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। तो यहाँ पे जो हमने प्रिज्म के बारे में डिस्कशन किया, तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो भी स्मॉल प्रिज्म के तरह ही एक्ट करेंगे। Here they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop। तो यहाँ पे जो ये रेन ड्रॉप होते हैं वो जैसे प्रिज्म रिफ्रैक्ट करते हैं 1 कलर को 7 कलर में स्प्लिट करने से, वैसे ही ये स्मॉल ड्रॉपलेट भी स्मॉल प्रिज्म के तरह एक्ट करते हैं। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, क्या है? रीज़न क्या है? ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच इट एट ऑब्जर्वर्स आइज एंड द रेनबो कैन सी। तो मेन रीज़न क्या है रेनबो नेचर में दिखने का? तो ये जो रेनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है? डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो उसके वजह से डिफरेंट कलर है वो ऑब्जर्वर की आई में पहुंचते हैं, और जो सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको रेनबो दिखता है। तो चलो उसको समझने के लिए यहाँ पे लिया है हमने ये रेन ड्रॉप लिया है, रेन ड्रॉप ये लिया है, सनलाइट इधर से आ रही है, सनलाइट लाइट को डिस्पर्जन होने के कारण और इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण ये सनलाइट ड्रॉपलेट्स में से जैसे बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई में पहुँचते हैं, तो ये वाइट लाइट का 7 कलर में डिस्पर्जन होता है। तो ये ऊपर का रेड कलर, नीचे का वायलेट कलर, दोनों ये इस तरह सभी 7 कलर ऑब्जर्वर की आई में पहुँचते हैं और नेचर में हमको रेनबो दिखता है। अ रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन ऑन अ सनी डे बाय लुकिंग एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विथ द सन बिहाइंड यू। तो हमको ये
रेनबो है वो कहाँ पे दिखते हैं, सनी डेज में भी दिखते हैं। सनी डेज में कब, जब लुकिंग एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन, तो वहाँ पे भी हमको ये रेनबो दिखता है। हियर नॉट वन थिंग, रेड कलर अपीयर्स ऑन द अपर साइड ऑफ द रेनबो एंड वायोलेट ऑन द लोअर साइड, इट कॉज अ प्राइमरी रेनबो। तो जो भी रेनबो है उसमें रेड कलर ऊपर दिखता है और वायलेट कलर नीचे दिखता है, उसको हम प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। अभी हमने जो देखा रिफ्रैक्शन के कारण, तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे रिफ्रैक्शन होते हैं, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इट इज़ द फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट on passing through the earth atmosphere, bending of light passing through the earth atmosphere, it called as the atmospheric refraction. Now the earth's atmosphere is not uniform throughout. हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने का मेन रीज़न क्या है? क्या है रीज़न? द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप एंड डाउन। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सभी जगह पे सेम नहीं है, इक्वली वो सेम नहीं है। जैसे जैसे हम अर्थ एटमॉस्फेयर में ऊपर या नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये अर्थ एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो चेंज होती जाएगी। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज विच एक्ट एज अ रेयर और डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे जैसे हम ऊपर या नीचे एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी जगह पे लेयर, कोई जगह पे हैवी डेंसिटी हो तो वो उसको हम बोलेंगे हैवियर डेंसर मीडियम, जहाँ पे डेंसिटी कम होगी उसको हम बोलेंगे रेयर डेंसिटी मीडियम। ड्यू टू दिस व्हेन द लाइट रेज पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर दे अंडरगोज रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर में डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण जब भी लाइट रेज एटमॉस्फेयर में आती है तो वो लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोज बाय दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमको अलग अलग जगह पे मिलते हैं देखने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो तारे होते हैं वो हमको जगमगाते हुए नज़र आते हैं, उसका रीज़न क्या है? ओके, उसका रीज़न क्या है वो हम अभी देखते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार? एक्चुअल में जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि स्टार आर ट्विंकलिंग। वाई? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मेन रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर of varying optical density is called as atmospheric refraction. The physical condition of the atmosphere keep on changing continuously, due to which density of air in different layer of atmosphere also keep on changing. तो जो स्टार की लाइट हमारे तक पहुंचती है वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह पे जो डेंसिटी डिफरेंस है, कुछ जगह पे ज़्यादा डेंसिटी होती है। अर्थ के नीचे के एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे डेंसिटी चेंज घटती जाती है, कम होती है। ओके, तो उसके कारण डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो लाइट, स्टार लाइट हमारे तक पहुंचती है वो बहुत सारे डेंसिटी डिफरेंस में से पास होके हम तक पहुंचती है। एज अ रिजल्ट the refractive index of various layer of atmosphere keeps changing continuously. As a result,
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर में अलग अलग होता है और वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. सो लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार सफर्स अ मल्टीपल रिफ्रैक्शन and keep the amount of starlight reaching the eye also keeps changing, and so that due to this fluctuation and perceived brightness of the star they appear like a twinkling. तो सिंपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, क्यों नज़र आते हैं? जो स्टार लाइट हमारे तक पहुंचती है वो एटमॉस्फेयर के बहुत अलग अलग लेयर में से पास होके हमारे तक पहुंचती है. एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर में जो डेंसिटी डिफरेंस होती है वो कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है. तो कंटिन्यूसली लाइट हम तक पहुंचती है, उसमें बहुत बार वो डेंसिटी डिफरेंस में से पास होके आती है और कंटिन्यूसली वो पास होके आती है. तो हमको जो स्टार है ओके उसकी लाइट ट्विंकलिंग करते हमको दिखती है. सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. मेन रीज़न इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण ही जो स्टार है वो हमको ट्विंकलिंग नज़र आते हैं. सेकंड वन इज़ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. तो यहाँ पे एक रीज़न है कि सनराइज़ जो होता है एक्चुअल सनराइज़ उसके पहले ही हमको सनराइज़ दिखता है और सनसेट होने के थोड़ी देर तक हमको सनसेट दिखता है. उसका रीज़न क्या है वो हम देखते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक्चुअल में सन की पोजीशन है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये सन की पोजीशन हमको यहाँ पे दिखती है. तो एक्चुअल में सन यहाँ पे होगा, उसी टाइम पे हमको सन ये पोजीशन पे दिखेगी. तो सुबह के टाइम एक्चुअल सनराइज़ होने से पहले ही हमको यहाँ पे सन की इमेज दिखेगी. ओके, उसको हम बोलेंगे एडवांस सनराइज़. वैसे ही उसके अपोजिट सनसेट के टाइम भी यहाँ पे अगर सन की एक्चुअल पोजीशन होगी तो भी हमको सन की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो यहाँ पे दिखेगा. तो सनसेट हो जाने के बाद भी, मतलब यहाँ पे सनसेट हो गए तो भी हमको यहाँ पे सनसेट नहीं हुआ दिखेगा, थोड़ी देर बाद सनसेट दिखेगा. तो उसको टाइम में डिले हो गए तो उसको हम डिले सनसेट बोलेंगे. Advanced sunrise is because of similar continuously atmospheric refraction that happens because because density of atmosphere is more near the earth's surface as the ray of light that enters atmosphere not close to the land, they are refracted, and due to the continuous refraction to the sunlight reaches land even after 2 minutes of the origin sunset. तो यहाँ पे ओरिजिन सनसेट और सनराइज़ के बीच में जो एक्चुअल होता है उसमें हमको 2 मिनट का डिफरेंस नज़र आता है. तो एडवांस सनराइज़ होने से 2 मिनट पहले ही हमको सनराइज़ होता हुआ दिखेगा, उसको हम एडवांस सनराइज़ बोलेंगे. सनसेट हो जाने के बाद 2 मिनट तक हमको सनसेट दिखेगा तो उसको हम डिले सनसेट बोलेंगे. दिस बोथ advanced sunrise and delay sunset is due to the effect of atmospheric refraction. I hope you understand today's lecture regarding to the refraction of light and atmospheric refraction. Thank you very much.